اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمیں ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل ریاست مدھیہ پردیش کی راجدھانی شہر بھوپال میں موجود تھا۔ گزشتہ کل میں نے بھوپال اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 1 کے سامنے ایک بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھا، مفتی ابوالکلام صاحب کا جامعہ ابو طلحہ۔ وہاں تمام طلبہ سے ملاقات کی، جمعہ کا دن تھا اور طلبہ کی چھٹی تھی، مگر طلبہ سے ملاقات تفصیلی انداز میں ہوئی، مدرسے کے حالات کو جانا، مفتی ابوالکلام صاحب کی کوششوں کو دل سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک شاندار جامعہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ہم آرام کر کے جمعہ کے لیے نکلے، اور اس شہر کی ایک بہت قدیم تاریخی بڑی خوبصورت مسجد ہے، مسجد کلثوم بھی، جو کسی نواب بیگم نے بنائی ہے۔ اللہ ان کو اس کا بہتر ثواب، بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ایصال ثواب کے طور پر ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کا بدلہ انہیں بہتر انداز میں نصیب فرمائے، ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جمعہ کا بیان میرا اس تاریخی قدیم پرانی مسجد میں جمعہ کا بیان ہوا۔ جمعہ کے بعد پھر جمعہ کا بیان، خطبہ اور نماز مفتی ابوالکلام صاحب نے حکم دیا کہ آپ ہی کو پڑھانا ہے، تو وہاں پر میں نے خطبہ بھی دیا، نماز بھی پڑھائی، اور پھر وہاں سے مفتی ابوالکلام صاحب کے مہمان ہم بنے، اور وہاں کھانے کے بعد پھر وہاں کا بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے دار القضاء، اسلامی ایک گویا کہ اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کے اعتبار سے اہل ایمان کے وہاں پر مسائل، اور چاہے وہ جائیداد کے مسائل ہو یا گھریلو مسائل ہو، وہاں پر حل کیے جاتے ہیں۔ قاضی شہر بھوپال حضرت قاضی مشتاق صاحب، مفتی ابوالکلام صاحب، نائب قاضی شرافت حسین صاحب، اور یہ تمام لوگوں سے، حسینی صاحب، ان تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اور دار القضاء کا نظام جو شہر بھوپال میں ہے، میں بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اتنا بہتر، اعلیٰ، سسٹمیٹک، منظم نظام پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے۔ تو بہت اچھا یہ پروگرام رہا بھوپال شہر کا۔ اور پھر رات میں بھوپال شہر سے دور 100 کلومیٹر دور باڑی شہر میں ایک جلسہ عام ہوا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، اور یہ جلسہ بھی بے انتہا کامیاب رہا۔ باڑی کے جوانوں نے، باڑی کے بزرگوں نے بڑی محنت کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اور یہ اجلاس بھی بے انتہا کامیاب رہا۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ممبئی کے گورے گاؤں سے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ گورے گاؤں میں بھیانک آگ لگی، جس میں 7 لوگوں کے ہلاک ہونے اور تقریباً
62 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। मरकजी यानी केंद्र सरकार और रियासती हुकूमत यानी महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने अफसोस का इजहार किया। मुंबई के गोरेगांव में वाक़े जय भवानी इमारत की पार्किंग में सुबह 3 बजे के करीब जबरदस्त आग लगी। इस हादसे में 7 अफराद हलाक हुए हैं और 65 अफराद के करीब जख्मी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत अभी और नाजुक बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है। वजीर आला सीएम एकनाथ शिंदे ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया और मरने वालों और उनके अहल खाना से ताजियत का इजहार किया। साथ ही उन मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया है। आइरा दिन बड़ी खबर आ रही, आप जानते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार बोलने वालों, लिखने वालों, पत्रकारों, सहाफियों को भी बाकायदा दबाने, कुचलने और ख़त्म करने की मेहनत कर रही है। जो सहाफी, जो पत्रकार, जो चैनल गोद में जाकर बैठ जाए, दलाली करे मोदी जी की और बीजेपी की सत्ता की दलाली करे, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो गोद में जाकर बैठ गई है, तो फिर उन्हें आका बड़े बड़े इनामात से नवाजता है। लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बोले और सवाल करे और जनता और मुल्क के मसाइल और मुद्दों पर बात करे, तो फिर अब 2024 के लिए मोदी जी ने तैयारियां शुरू कर दी है पत्रकारों को भी दबाने की। अभी खबर आ रही है कि न्यूज क्लिक पर जो छापा मारा गया था, उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस दी गई। 9 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में फिर समाअत होगी। और खबर ये भी आ रही है कि बेबाक सवाल पूछने वाले अभिसार शर्मा और उर्मिलेश से फिर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभिसार शर्मा का बयान आया है कि मैं डरूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं, मैं सवाल सत्ता से करता रहूंगा। आइए बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हां, इलेक्शन से पहले मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले मोदी जी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। और झूठ बोलने में तो खुदा का शुक्र है मोदी जी से आगे आज तक कोई निकला नहीं है। झूठे वादे करने में, धोखे देने में बीजेपी से आगे, और बीजेपी का मुकाबला किसी ने आज तक न किया है, न आगे भी किसी के करने की उम्मीद है। तो अब मुफ्त रेवड़ियां इलेक्शन से पहले बांटने पर सुप्रीम कोर्ट बड़ी गुस्सा हो गई और राजस्थान और मध्य प्रदेश और मरकज यानी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। चीफ जस्टिस की अदालत का इलेक्शन कमीशन से भी 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, राजस्थान और मध्य प्रदेश हुकूमत को असेंबली इलेक्शन से पहले ऐन कबल मुफ्त रेवड़ी की तकसीम जैसे ऐलानात और स्कीमों पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की अदालत ने उनसे 4 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। अदालत ने यह नोटिस मफादे आम्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए जारी किया है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली में शरद जी पवार निखड़ गए, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दबंग नेता और चेहरे और लीडर राहुल गांधी से शरद जी पवार ने मुलाकात की। अपोजिशन के इंडिया अलायंस के फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के मुस्तकबिल के खाके और हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की गई। तीनों लीडरों की मीटिंग खड़गे की रिहाइश गाह पर हुई। उसमें एनसीपी लीडर जितेंद्र औहार, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन गुरु भी मौजूद थे। मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट किया। मुल्क के लोगों की आवाज को मजीद बुलंद करने के लिए एनसीपी के सदर शरद पवार ने गुज़िश्ता कल राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मुल्क का नक्शा जरूर बदलेगा। आइए दिन बिहार के मधुबनी से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मधुबनी के हरलाखी में अंसारी अल्ताफ की लिंचिंग हुई। बिहार पुलिस ने हादसाती मौत का दावा किया है और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्विटर पर
मिल्लत टाइम्स न्यूज पोर्टल ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से लिखा कि बिहार के मधुबनी में अल्ताफ अंसारी को हिंदू भीड़ ने, या सीधा सीधा कह लीजिए कि भगवा आतंकवादियों की भीड़ ने पीट पीट कर अल्ताफ अंसारी को कत्ल कर दिया। हरलाखी विधानसभा हल्के के उस गांव के रहने वाले अल्ताफ की मॉब लिंचिंग में मौत हुई। अल्ताफ 4 साल बाद बैरूने मुल्क से जॉब पूरी करके बिहार आया था। जब वो अपनी बहन को लेकर ससुराल जा रहा था, वहां से लौटते वक्त कुछ बाइक सवार भगवा हिंदू आतंकवादियों ने उनकी तू-तू मैं हुई, जिसमें बाइक सवार सोम सिंह और उसके 4 साथियों ने मिलकर अल्ताफ अंसारी को बेरहमी से मारा पीटा, जिसके बाद अल्ताफ अंसारी की मौत हो गई। अहले खाना का इल्जाम है कि अभी तक बिहार की बदमाश पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। वहीं मधुबनी पुलिस ने लिखा कि बराए करम मामलात को जाने, अफवाह न फैलाए। वीडियो फुटेज की जांच की गई है। इसमें 2 मोटरसाइकिल का आमने सामने तसादुम तेजी से हुआ, जिसमें महलूक संगीन तौर पर जख्मी हो गया। इसमें किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग का मामला सामने नहीं आया है, ऐसा पुलिस का दावा है। दिन अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है। एक्चुअल में 2024 करीब आ रहा है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया। बाबरी मस्जिद ने 30 साल तक के भगवाधारियों को धंधा दिया, रोटियां खिलाई, कुर्सी दिलाई। अब बाबरी मस्जिद खत्म हो गई तो अयोध्या में फिर कोई और एक ऐसा मुद्दा खड़ा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। और बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है कि अयोध्या में वक्फ मस्जिद को 30 लाख रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को भेज दिया गया। यह शर्मनाक खबर अयोध्या से आ रही है। इस खबर के मुताबिक एक वक्फ मस्जिद को मस्जिद के मुतवल्ली की जानिब से राम मंदिर ट्रस्ट को फरोख्त कर दिया गया है। इस खबर से यहां के मुस्लिम समाज में फिर बेचैनी फैल गई है। मुतवल्ली और मस्जिद कमेटी के एक रुकन के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है, जिसने बतौर मुतवल्ली और टेम्पल ट्रस्ट के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट टू सेल पर दस्तखत किए थे। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा के पूरा फर्जी वाड़ा है और 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हैं और यही मस्जिद फिर आगे 15, 20, 30 साल तक के कुर्सी दिला सकती है और फिर इसी झगड़े में हिंदू मुसलमानों को उलझाया जा सकता है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईडी अब इधर भी घूम गई है। जी हाँ, खबर है कि कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी को भी ईडी ने याद कर लिया, बुला लिया। मारूफ अदाकार रणबीर कपूर के बाद तहकीकाती एजेंसी ईडी ने मकबूल फिल्मी अदाकारों कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी इंक्वायरी के लिए बुला लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर ईडी ने चंद नए अदाकारों को भी तफ्तीश में शामिल करने का फैसला किया है। कपिल शर्मा और हिना खान को एजेंसी के दफ्तर तलब किया गया है। एक दिन पहले रणबीर कपूर को भी बुलाया गया था। मैं आपको बताऊं कि रणबीर कपूर को एक सट्टेबाजी की ऐप की तशहीर करने पर बड़ी रकम मिली थी, जिसके मुतालिक पूछगछ की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17 बॉलीवुड शख्सियात इस केस में मुलव्विस हैं, जिनमें श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ और सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, पहली खबर तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पार्लियामेंट में तौहीन आमेज बयान जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट में तौहीन आमेज बयान देना जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐवान के अंदर तौहीन आमेज काम कोई जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तजवीज़ में कहा गया था कि पार्लियामेंट और असेंबली में तौहीन आमेज बयान समेत दीगर तरह के कामों को कानून से बालातर नहीं समझना चाहिए, जिससे ऐसा करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सके। तजवीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐवान के अंदर पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने पर मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अराकीन को ऐवान के अंदर बोलने की पूरी आज़ादी है, यानी ऐवान में आप बिल्कुल खुलकर
गालियां दे सकते हैं, लोग ऐसा ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत करना चाहिए कि क्या क्या बोलने की आजादी है और क्या बोलने की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा तो इसके बाद ट्विटर पर जाकिर अली त्यागी, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा कि ठीक है, फिर कंवर दानिश अली आने वाले सरमाई इजलास के दौरान खूब गालियां देना। कंवर दानिश अली ने बिल्कुल भिदोरी की मां बहन सब एक कर देना। गालियों की लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। जो मोहतरम तालियां बजा रहे थे उन्हें पर्चे में लपेट लपेट कर गालियां देना है। उन्होंने एक शेर भी लिखा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी रमेश भिदोरी सुप्रीम कोर्ट के जरिए से गोया के बचा लिए गए हैं। और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से ये निकल कर आ रही है कि जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी, जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। इस वक्त बेंगलुरु कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि मस्जिद के सामने पूजा की इजाजत देने पर 3 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया। कर्नाटक के महकमा पुलिस ने कोप्पल में एक मस्जिद के सामने गणेश की मूर्ति की पूजा की इजाजत देने पर 3 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया है। जिला पुलिस ने जुमा को ये इत्तला दी है। गंगावती सिटी पुलिस स्टेशन से मुंसलिक इंस्पेक्टर गड़ीकुप्पा, PSI कामना और हेड कांस्टेबल सुमानी को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। यह हुक्म जिला SP ने जारी किया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस एहलकारों ने 3 अक्टूबर को गणेश मूर्ति के विसर्जन पर प्रोग्राम के दौरान ड्यूटी में लापरवाही का मुजाहरा किया। सस्पेंड पुलिस एहलकारों के बारे में कहा जाता है कि वो जामे मस्जिद के सामने पूजा को रोकने में नाकाम रहे। हिंदू अकीदतमंदों ने एक गाड़ी में गणेश की मूर्ति का जुलूस निकाला और कोपल शहर की जामे मस्जिद के सामने पूजा की। मुअत्तल पुलिस एहलकार उस वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पूजा को नहीं रोका। इस वाक़े से कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। 30 सितंबर को नौजवानों ने मस्जिद के सामने नारे लगाने और खुसूसी पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। दिन पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। रियासत पंजाब में, पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब में नरेंद्र मोदी के पुतले फूंक कर आंदोलन किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के AAP लीडरों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में जोरदार एहतजाज किया और कई मकामात पर AAP लीडरों ने यानी आप पार्टी के लीडरों ने एहतजाज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए और यह भी कहा कि ED को संजय सिंह के घर से 1 पैसा या कोई गैर कानूनी दस्तावेज भी नहीं मिली। यह सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वजीर आजम मोदी जो भी करें वो हमें डरा नहीं सकते। ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI कितने ही छापे मारे, कितनी ही गिरफ्तारियां क्यों न कर ले, आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा कि यह हमें रोक नहीं सकते हैं। हम मोदी के खिलाफ और मोदी और BJP की घटिया पॉलिसियों के खिलाफ बोलते रहेंगे।